다시 한번. 네, 잠깐만요. 네. 이제 마지막 강의입니다. आज ये आप लोगों का आखिरी लेक्चर का टाइम है। امروز میگه تایم لکچر آخری شماست. 우리 파키스탄에서 오신 제자들 그리고 이란과 아프가니스탄에서 오신 제자들에게 하나님이 크신 은혜를 주시길 바랍니다. पाकिस्तान से आए तमाम शागिर्दों के लिए और ईरान और अफगानिस्तान से आए तमाम शागिर्दों के लिए हम खुदा उनके शुक्रगुजार हैं। شکرگزاری میکنم از تمام شاگردایی که از پاکستان آمدن و از ایران و افغانستان تشریف آوردن. 지금까지 우리는 성경에서 말하는 복음, 그 복음의 내용이 뭔지에 대해서 계속 살펴봤습니다. अभी तक हमने कलाम मुक़द्दस के मुताबिक खुशखबरी क्या है और खुशखबरी से मुतल्लिक सारी बातों को सीखा। تا به حالا میگه مطابق به کتاب مقدس ما یاد گرفتیم خوشخبری چی است و در اون مورد یاد چه رقم است. 특별히 초대교회 성도들이 무엇을 믿었고 무엇을 전했는지를 우리가 확인했습니다. हमने चेक किया कि इब्तदाई कलीसिया के पास क्या पैगाम था और वो कौन सा पैगाम सुनाती थी। हमने इस चेक किया था। ما او را میگه دیدیم که در کلیسا ابتدایی چه رقم پیام داشت. 사도들과 초대교회가 그렇게 믿고 그렇게 전했다고 하면 반드시 우리가 그 길을 따라가야 되는 것이 옳습니다. क्योंकि रसूलों का भी यही ईमान था, इब्तदाई कलीसिया का भी यही ईमान था, इसलिए उसी ईमान का हमारे पास होना ठीक बात है। و به خاطر که به رسولان امیر کلیسا بود به ما عین چیز است و نمو मुनासिब बात है। مناسب است. 그래서 예수님이 하나님의 아들 그리스도라고 하는 메시지는 사실 성경 전체의 핵심이며 요약이라고 할 수가 있습니다. और अगर हम देखें तो बाइबल मुकद्दस का जो कोर है वो इसी बात पर मुबनी है कि यीशु ही मसीह है और इस कलाम के लिए इस कलाम की बाबत बाइबल मुकद्दस हमें बारहा बताती है। وی بر ما واضح می‌سازد که بارها در کتاب مقدس گفته شده که عیسی مسیح است. 또 하나는 요한복음 20장 31절의 기록의 성경의 기록의 목적 또한 예수님이 그리스도이심을 믿게 하려고 기록됐다고 얘기하고 있습니다. और हमने देखा कि यूहन्ना की अंजील 20वें बाब की 31वीं आयत में कलाम मुकद्दस बताता है कि यीशु के मसीह होने पर ईमान लाने के लिए इसे लिखा गया। به خاطر از اینکه بر ما واضح شده باشه ما در کتاب مقدس گفته شده بود که عیسی به خاطر کشیدن به صلیب واضح ساخت که عیسی مسیح است. 사도들과 초대 교회가 전했던 내용이며 성경의 기록의 목적이 바로 예수가 그리스도라고 하면 이것만큼 중요한 것은 없다라는 것이죠. हमें मालूम होता है कि रसूलों ने जो खुशखबरी सुनाई, इब्तदाई कलीसिया ने जो खुशखबरी सुनाई, कलाम मुकद्दस का जो मकसद है कि यीशु ही मसीह है, ये पैगाम जो है लोगों के पास नहीं पहुंचा। همین پیامه که عیسی مسیح است این مگه چیزی که در کتاب مقدس است برای کلگی نرسید. 이것이 너무나 중요하기 때문에 고린도후서 4장 4절에 사단이라고 하는 존재가 이 복음만큼만 가린다고 되어 있습니다. और क्योंकि ये बहुत ही खास पैगाम है इसलिए दूसरे करंथी चौथे बाब की चौथी आयत में हम देखते हैं कि इब्लीस इस खुशखबरी को लोगों तक नहीं पहुंचने देना चाहता। این را میگه ما در کتاب مقدس خواندیم ये खुशखबरी इतनी खास है یک قدر خاص بود که ما این را ابلیس नहीं चाहता ابلیس نمیخواست ये खुशखबरी लोगों तक که به पहुंचे همگی برسه और इसका रेफरेंस हमें दूसरे करंथी चौथे बाब में मिलता है। و این در قرنتیان دوم آیه 6 بر ما معلوم میشه. 그래서 실제로 교회를 오래 다녔지만 복음을 모르는 경우 그리고 교회가 너무 많은데도 불구하고 복음을 모르는 그런 민족들이 전 세계에 많습니다. और हम इस बात को देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में कलीसियाएं बहुत ज़्यादा हैं, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इबादत की जाती है, लेकिन उनके पास इस खुशखबरी का पैगाम नहीं है। ما میگه میبینیم که در تمام دنیا کلیسا زیاد است، مسیحا زیاد است، ولی همین پیغام و خوشخبری به جای نمیرسه. 그래서 교회가 없는 나라도 문제지만 사실은 교회가 많지만 그 안에 복음이 없는 것이 더 큰 문제일 수가 있습니다. तो ऐसे ममालिक जहाँ पर कलीसियाएं नहीं है वो तो अपनी जगह एक मसला है, लेकिन जहाँ कलीसियाएं कसरत से हैं वहाँ भी बड़े मसले हैं। میگه در کشورهایی که کلیسا نیست او خود درست است که مشکل دارن، اما در کشورهایی که کلیسا فراوان است در اونجا این مشکل زیاد بیشتر است. 지금이 그런 때인 것 같습니다. और इस वक्त जो है दुनिया का ये हाल है।
इस दौर में। برای فعلا در این دوره در دنیا می حال است. 어떤 곳은 아예 기독교를 반대하기 때문에 기독교가 없기도 하지만 어떤 곳은 분명히 교회가 존재하는데도 불구하고 그 안에 복음이 없는 이런 일이 지금 벌어지고 있습니다. और हम देख सकते हैं कि अब हमारे दौर में ऐसी जगह, ऐसे ममालिक भी हैं या ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर लोग मसीहत के खिलाफ हैं, और जहाँ मसीहत कसरत से है वहाँ भी ये खुशखबरी मौजूद नहीं है। و در بعض کشورهایی که فعلا است اونجا خوشخبری مشکل است و موانع مواجه میشه و در جایی که موانع نداره در اونجا کار کم است. 그런 상황 가운데 저와 여러분들에게 성경에서 말하는 이 복음이 계시가 되고 다가왔다고 하는 것은 큰 축복입니다. और ऐसे हालात में ये खुशखबरी, इसका मुकाशफा जो हमें मिला, अब जो आपको मिला, ये हमारे लिए एक बड़ी बरकत है। و این بر ما یک برکت بزرگ است که مکاشفه و این خوشخبری. 정말 확실한 것은 저와 여러분들이 받은 이 복음이라고 하면 능히 여러분도 살리고 여러분의 민족도 살리고 전 세계도 살릴 수가 있습니다. हकीकत अगर बयान की जाए तो समझ लें इस बात को कि अगर आपने इस खुशखबरी को कबूल कर लिया तो ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी बल्कि आपकी कलीसियाँ और आपके जो कौमें हैं वो भी निजात पा सकती हैं, बच सकती हैं। حقیقتی است که میگه اگر شما چیزی را آموخته باشین بعدگاه برسونین در کلیسا و اینجا این زندگی شما هم تغییر میکنه و زندگی دیگران هم تغییر میکنه. 이 복음을 가졌던 사도들은 모든 어려움을 이겨냈을 뿐만 아니라 결국은 로마를 복음화했던 일이 이미 성경에 기록되어 있습니다. हम देख सकते हैं कि जिन शागिर्दों के पास ये खुशखबरी थी, ना सिर्फ उन्होंने अपनी ज़िंदगियों को बल्कि जो रोमी दौर था उनका, उस दौर में बहुत सारी जगहों पर निजात के काम को किया। میگه بر ما در وقت رومیا این بر ما واضح است که در موضوع خوشخبری در بسیار جا تلاش میشد ولی با موانع مواجه شد. बावजूद तमाम मुश्किलात के با وجود تمام مشکلات اونا کار میکردن ولی اکثرا با موانع روبرو میشد. 지금 우리는 그들과 동일한 복음을 우리는 지금 가지고 있는 것입니다. इस वक्त जो हमारे पास खुशखबरी है, ये वही खुशखबरी है जो उनके पास थी। در حال حاضر همین خوشخبری که نزد ماست همین خوشخبری نزد اونا هم بود. 이 그런 말은 그런즉 이 복음이 여러분들 가운데 있기 때문에 복음을 가진 여러분들은 여러분의 삶에서 성공할 거고 승리할 거고 여러분의 민족을 능히 살려낼 수 있을 것입니다. और अब हम ये समझ सकते हैं कि अगर ये खुशखबरी आपके पास है तो आप अपनी ज़िंदगी में तरक्की हासिल कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में अथॉरिटी हासिल, मतलब क्या कहेंगे इसको, कुव्वत हासिल कर सकते हैं और आप अपनी कौम को बचाने का काम कर सकते हैं। و ما میگه مطمئن هستم این خوشخبری را که شما گرفتین میرین شما خود زندگی خودم تغییر داده میتونین، قوی شده میرین و زندگی دیگران را میتونین تغییر بدین. 그러니 바라기는 정말 여러분들이 계속 이 복음에 집중하시고 이 복음을 계속 발견하는 그런 은혜가 있기를 바랍니다. और इसलिए हम चाहते हैं कि खुदा आप पर फजल करे कि इस खुशखबरी को आप कंटिन्यूसली अपनी ज़िंदगी में लेते रहें और ज़्यादा मुकाशफत आप पर खुलते रहें और आप बरकत हासिल करते रहें। و ما میخواهیم که شما این خوشخبری را گرفتین دگام در عمق مکاشفه برین و این را برکت بگیرین و به دیگران और ज़्यादा برسانین गहरे भेद आप सीख सकें। و دیگه هم شما بیاموزین. 여러분 이 성경은 구약과 신약으로 나뉘어져 있습니다. हम देख सकते हैं कि बाइबल में दो बड़े हिस्से हैं, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा। ما میگه میبینیم که کتاب مقدس دو قسمت داره، عهد عتیق و عهد جدید. 약속을 얘기한 겁니다. 옛날 약속, 새로운 약속이라고. इसका मतलब यह है कि दो वादों का जिक्र है, पुराना वादा और नया वादा। در این هدف چی است که در این دو نوع وعده وجود داره که وعده قبلی سابقه و یکی وعده جدید، عهد جدید. 무슨 약속이냐면 그리스도에 대한 약속입니다. कौन सा वादा है इसके अंदर? मसीह के बारे में वादा है। وعده چی است در داخل از او؟ در مورد مسیح است. 구약은 메시아가 오실 것이라고 하는 얘기고 신약은 그분이 오셨고 다시 오실 것이라고 하는 약속입니다. पुराना अहदनामा बताता है कि मसीहा आएगा نامه عتیق میگه که مسیح می آید और नया अहदनामा हमें बताता है कि मसीहा आ गया, अब वो दोबारा आएगा। و نامه جدید میگه که مسیح آمد و او دوباره میاد. 구약에 약속하신 대로 메시아는 이 땅에 오셨는데 그분이 바로 예수님이시다. 이것이 성경의 얘기입니다.
वो शख्स, वो मसीहा जो पुराने ऐहदनामे के ऐन मुताबिक दुनिया में आया, वो यस्सु है। ये बाइबल बताती है। ونامو عیسی که در مطابق پیشگویی اهنامه عتیق گفته شده بود او آمد و بازم میاد و او عیسی مسیح است. 그 메시아 예수는 이 땅에 오셨다가 승천하셨는데 곧 다시 오실 것이다. 이것이 신약이 우리에게 말하고 있는 약속입니다. और वही मसीहा जो आया वो दुनिया से दोबारा आसमान पर चला गया, अब वो दोबारा आएगा। यही बात हमें कलाम मुकद्दस बताती है। و امو مسیحی که آمده بود رفت به آسمان و باز دوباره میاد 약속하신 و 대로 ما همین موضوع را میخوانیم. 약속하셨던 대로 오셨던 그 주님은 다시 약속하신 그대로 오실 것입니다. जिस तरह से उसने पुराने वादे को पूरा करते हुए पहले मसीह दुनिया में आया, उसी तरह वो दोबारा आएगा। همون طور که در عهد عتیق گفته شده بود او عهد به جا شد آمد رفت و باز دوباره میاد مطابق عهد جدید. 그래서 예수가 그리스도라고 하는 복음을 가진 사람들은 누구나 주님의 다시 오심을 기다리는 사람이어야 합니다. इसीलिए लाजमी है कि हर वो शख्स जो यस्सु के मसीह होने का इकरार करता है, वो उसकी दूसरी आमद के इंतजार में अपनी जिंदगी को गुजारे। و این میگه حتمی است که باید کسایی که به عیسی مسیح ایمان آورده و منتظر آمدن دوبارش باشند. 예수님을 그리스도로 믿는 자는 하나님의 자녀가 되었다고 하고 또 한편의 다른 의미는 그리스도의 신부가 되었다고 합니다. याद रखिए कि एक तरफ हमें जब पता चलता है कि वो मसीह है जो दुनिया में आया है, और वो लोग जो उस पर ईमान लाते हैं उनके लिए वो दुल्हा जो है वो कहलाता है। و به یاد داشته باشین طوری که ما شنیدیم دیدیم که مسیح آمد و او پس رفت او را به شاه یعنی हम उसकी दुल्हन हैं और वो हमारा दुल्हा है। ما عروسش هستیم و او پادشاه ماست شاه ماست. 우리가 그리스도의 신부가 되었기 때문에 신랑 대신 그리스도께서 오시기를 바라보고 그쪽으로 나아가는 것, 이것이 올바른 우리의 모습입니다. और इसीलिए क्योंकि हम दुल्हन हैं और एक वफादार दुल्हन क्या करती है, अपने दूल्हे का इंतजार करती है। वह और जब बखौफ दुल्हा है आता कि- है तो उसके साथ जाती है। و این را میرسانه که ما منتظر آمدن شاه هستیم، منتظر آمدن و ما مانند یک عروس منتظر هستیم که بیا و ما با او یک جا دوباره بریم به آسمان. 주님이 다시 오시면 우리는 그분과 같은 모습으로 변화되어서 영원한 하나님의 나라에서 왕노릇하는 자가 될 것입니다. याद रखिए कि जब खुदावन दोबारा आएगा, जिस तरह वो अपने जलाल में होगा, उसी तरह वो हमें भी तब्दील करेगा और अपने जलाल में जलाली बनाकर शामिल करेगा। به یاد داشته باشین وقتی که مسیح میاد و با جلالش ما را هم جلال میته و با خود میبره. 26강 주님의 재림에 관한 말씀을 좀 정리해서 드리겠습니다. 26वां लेक्चर जो है वो यीशु मसीह की दूसरी आमद की बाबत बात करता है, और لکچر हम इसको 26 که است در مورد دوباره آمدن مسیح گپ छोटा میزنه. करके पेश करेंगे। او را خرد کرده با شما گپ میزنیم. 주님은 반드시 오십니다. खुदावंद यीशु मसीह जरूर लाजमी आएंगे। خداوند عیسی مسیح ضرور و حتمی میاد. यूहन्ना की इंजील 14वें बाब की पहली 3 आयत। فصل 14 یوحنا آیه کلاسه तुम्हारा दिल ना घबराए, که تو نترس، तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। تو بر خدا ایمان داری بر ما هم ایمان داشته باش. मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, در خانه پدر ما بسیار اتاقهای است. अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, اگر نمی بود من خودت میگفتم. क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, و ما میفهم که به خاطر تو باید جای آماده کنم और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा و اگر ما برم برای خودت جای آماده کنم तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, پس ما آمده خودت با خود میبرم ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो। تا که در جایی که من هستم تو هم باشی. 우리를 위하여 거처를 예비하시고 다시 오신다고 직접 얘기하셨습니다. यीशु मसीह ने खुद ये बात कही है कि वो हमारे लिए तैयारी करके दोबारा आएगा और हमें ले जाएगा। عیسی مسیح خود گفته ایره که برای ما به اونجا آمادگی میگیره و میاد ما را با خود میبره. 우리 9장 28절 같이 इब्रानियों की किताब 9 बाब की 28वां आयत हम सब मिलकर पढ़ेंगे। عبرانیان مگه فصل 9 آیه 26 جی. همه میخوانیم. مسیح एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाया कि कुर्बान होकर दूसरी बार निजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं।
자기를 바라는 우리에게 두 번째 나타나신다고 말씀하셨습니다. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने अपनी दूसरी आमद के बारे में अपने कलाम में लिखाया है. اینجا میگه ما میبینیم که خداوند عیسی مسیح در مورد آمدن دوباره خود نوشته. 이 재림에 관한 구절은 신약 성경에 300번 이상 언급되어 있고 전체 구절 중에 4% 25분의 1이 해당됩니다. अगर हम यहाँ पर देखें तो कलाम मुकद्दस में नए अहदनामे में 300 बार यीशु मसीह की दूसरी आमद का जिक्र है. اگر ما توجه داشته باشیم در کتاب مقدس در عهدنامه سابق عتیق 300 بار ذکر شده به और इसका خاطر मतलब क्या हुआ? آمدن دوباره مسیح. इसका मतलब क्या हुआ कि 1/4 हिस्सा नए अहदनामे का यीशु मसीह की दूसरी आमद के बाबत कहता है. و این به ما بیان کرده. میرسانه که در عهدنامه جدید بسیار کم گفته شده در اون مورد که پس 구약의 예수님이 오신다라고 하는 그 약속보다 신약의 예수님이 오신다고 하는 비율이 훨씬 더 높습니다. पुराने अहदनामे में जितनी पेशनगोइयाँ यीशु मसीह की बाबत की गई हैं در عهدنامه عتیق هر قدر پیشگویی که در باره عیسی مسیح گفته شده नए अहदनामे में उससे भी ज्यादा जिक्र उसकी दूसरी आमद का मिलता है. در عهدنامه جدید از او که اضافه تر در این مورد گفته شده. با معذرت پیشتر 1.25 بود که من ندیده بودم، یعنی از 4 قسمت یک قسمت. 그래서 구약의 약속대로 주님이 오셨다면 신약의 약속대로는 더욱 주님이 오실 것입니다. लिहाजा पुराने अहदनामे की पेशनगोइयों के मुताबिक जब यीशु मसीह आया तो नए अहदनामे की पेशनगोइयों के मुताबिक लाजमी तौर पर वो दोबारा जाहिर होंगे. طوری که در عهدنامه عتیق گفته شده بود در پیشگویی که او میآید و آمد، و در عهدنامه جدید گفته شده که او دوباره میآید، بازم گفته شده او حتما میآید. 그 주님의 재림에 여러 가지 특징이 있지만 네 가지만 정리해서 말씀드리겠습니다. और उसकी दूसरी आमद की बाबत बहुत सारी खसूसियात हैं, उनमें से हम सिर्फ 4 की बाबत बात करेंगे. و در مورد دوباره آمدن از او بسیار خصوصیات زیاد است. ما تنها در مورد 4 موردش حرف می‌زنیم. एमाल की किताब पहला बाब 11वीं आयत पढ़िएगा, सब मिलकर در पढ़ेंगे. اعمال فصل 1 آیه 11. जी और कहने लगे, "ऐ गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े हो आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठा है, इसी तरह फिर आएगा, जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है." 천사가 분명히 얘기했습니다. 이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 올라가신 그대로 다시 내려오신다고 얘기해요. हम देख सकते हैं कि फरिश्ता यहाँ बयान करता है कि जिस तरह यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए बिल्कुल इसी तरह दोबारा वापस आएंगे. ما میبینیم که در اینجا فرشته ها میگه همون طرف طوری که فرشته ها او را از آسمان پایین کرد، پس برد، پس دوباره پس اونها را میارن. 그리고 두 번째 특징입니다. दूसरा हिस्सा देखिए, लूका की अंजील 21वां बाब 27वीं आयत. قسمت जी 12 انجیل لوقا 21. उस वक्त उस वक्त लोग अपने आदम को कुदरत और बड़े जलाल के साथ इबादत यात्रा करते हैं। जी तीसरा हिस्सा भी पढ़िए, नहीं सॉरी जकरिया को भी पढ़िएगा. जी और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के बाशिंदों पर फसल और मनाजात की हिफाजत करूंगा, और वो उस पर जिसको उन्होंने छेदा है नजर करेंगे और उसके लिए मातम करेंगे, जैसा कोई अपने इकलौते के लिए करता है, और उसके लिए तब काम होंगे जैसे कोई अपने पेलोटे के लिए होता है. आमीन. 모든 사람들이 볼 수 있도록 오시는데 심지어 그 찌른 자도 볼 수 있도록 오신다고 되어 있습니다. यहाँ पर लिखा है कि तमाम दुनिया के लोग उसको आते देखेंगे, वो भी जिन्होंने उसे कीलों से छेदा, किलो से छः. कील से उसके हाथ में कील जो डाला उसके अंदर, वो भी देखेंगे. अच्छा. و اینجا میگه تمام دنیای را میبینه که دوباره عیسی مسیح پس میاد و در 올려가신 دستش 그대로 نشان. 올라가신 그대로 내려오시고 모든 사람들이 볼 수 있도록 내려오십니다. यहाँ हम देख सकते हैं कि जिस तरह वो आसमान पर उठाया गया उसी तरह वापस आएगा और तमाम दुनिया के लोग उसे देखेंगे. و این را میبینیم بازم میگه که همونطوری که او رفت به آسمان، پس او دوباره میاد و تمام دنیا او را میبینه. 세 구절 읽어주세요. 세 번째 특징. आइए हम देखते हैं जो आगे की 3 आयत हैं. मत्ती की इंजील 24वां बाब 36वां आयत. जी लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, न आसमान के फरिश्ते, न बेटा मगर सिर्फ बाप। 42वीं आयत. बस जागते रहो कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। जी 44वीं आयत. इसलिए तुम भी तैयार रहो, इस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा, इब्ने आदम आ जाएगा। 세 번째 특징은
그 날과 그때는 아무도 모른다고 되어 있습니다. हम यहाँ देख सकते हैं कि जो तीसरी खास बात है उस बाबत कि कोई शख्स उस वक्त उस घड़ी के बारे में नहीं जानता. ما این را میبینیم یکی از خصوصیاتی است که به خاطر آمدن از او هیچ کس نمیفهمه که کدام وقت کدام تایم کدام روز میاد. 그래서 여러분 주변에 굉장히 신령하다고 하는 사람들이 예수님이 오실 날을 만약 맞춘다고 얘기하면 무조건 이단입니다. तो समझ लें कि अगर कोई शख्स आपको यीशु मसीह की आमद के दिन या वक्त के बारे में बताता है तो वो लाजमी तौर पर बिद्दत है. و این را بفهمن هر کسی که پیشگویی میکنه که در مورد مسیح میگه که در این روز تاریخ میگه او بیخی غلط است. 성경을 이용해서 절기를 이용해서 일어나는 여러 가지 환경을 이용해 가지고 어떤 날을 얘기한다. 무조건 틀렸습니다. इस बात को समझ लें कि हर वो शख्स जो कलाम को इस्तेमाल करके हालात को इस्तेमाल करके ये जितने भी निज़ाम चल रहे हैं उनके बाबत ध्यान करके कहे कि फलां फलां वक्त पे यीशु मसीह आएगा वो लाजमी बिद्दत है. و این بدعت از هر کسی که پیشگویی میکنه که در این تایم در فلان وقت در فلانی جا عیسی مسیح میاد. 분명히 얘기했습니다. 예수님이 나도 모른다고 표현했습니다. यीशु मसीह ने खुद से कहा कि मैं भी उस वक्त की बाबत नहीं जानता. عیسی مسیح میگه خودش هم گفته که ما در مورد از او وقت نمیدانم. 그러니까 이 땅에 어떤 사람들도 예수님보다 뛰어나지 않습니다. 암만 뛰어난 사람이 날과 때를 얘기한다 해도 그 말은 거짓말입니다. और समझ लें इस बात को कि कोई भी ऐसा शख्स दुनिया में नहीं जो यीशु मसीह से ज़्यादा मालूमात रखता हो और उसके बावजूद वो कहे कि मैं यीशु मसीह की आमद को जानता हूँ, ये मुमकिन ही नहीं. و این میگه چون خود عیسی مسیح نمیفهمه که از عیسی مسیح که هیچ کس بیشتر نمیفهمه و او خودش نمیفهمه که چه وقت میاد و هر کسی که پیشگویی میکنه این بدعت است. 그리고 네 번째 특징은 마태복음 24장 14절에 세계복음화가 되면 주님 오신다고 하는 것이 네 번째 특징입니다. और हमें एक चौथी खास बात मालूम पड़ती है यीशु मसीह की दूसरी आमद की बाबत. मत्ती के इंजील 24वें बाब की 14वीं आयत में पढ़िएगा जल्दी से जी. और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब के लिए गवाही हो तब खात्मा. यहाँ पर हमें मालूम होता है कि जब खुशखबरी तमाम दुनिया में पहुंचेगी तो खात्मा होगा. و این را میگه که در تمام دنیا وقت خوشخبری رسید اون وقت ختم است یعنی زمان پوره میشه. 주님의 다시 오심은 반드시 전 세계에 하나님이 택한 자들이 구원받은 이후에 주님 다시 오십니다. समझ लें इस बात को कि यीशु मसीह की दूसरी आमद लाजमी तौर पर होगी. این را بفهمیم که آمدن دوباره عیسی مسیح حتمی است. और वो लोग जिनको खुदावन ने चुना है जब उन तक खुशखबरी पहुंचेगी तो दूसरी आमद का दिन आ जाएगा. و اونایی که خوشخبری گرفتن در مورد عیسی مسیح و این به آمدن دوبارهش اعتقاد دارن و حتما آمدنی است. 그래서 주님의 다시 오심을 바라는 분들은 누구든지 이 세계복음화에 대한 마음을 가지고 사역을 하게 되어 있습니다. और इसीलिए हर वो शख्स जो यीशु मसीह की दूसरी आमद के इंतज़ार के ईमान में जिंदा है, हर वो शख्स जो यीशु मसीह की दूसरी आमद का ईमान रखता है هر کسی که به آمدن دوباره عیسی مسیح ایمان داره वो दुनिया में खुशखबरी के पैगाम को फैलाने के लिए जिंदा है. او به خاطر رساندن خوشخبری به دنیا زنده است. 세계복음화는 곧 내 나라를 벗어나서 전 세계 다니는 것이 세계복음화가 아닙니다. 다시 한번요. 세계복음화는 네. 내 주변에 있는 사람들에게 복음 전하는 것도 세계복음화입니다. 우리처럼 오케이, 맞아요. 밖으로 돌아다닌 것만 세계복음화가 아닙니다. इस बात को समझ लें कि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जी दुनिया की इंतहा का मतलब है कि बाहर मुल्कों में जाके काम करना है. یعنی تو فکر میکنن که هر کس فکر میکنه که ما باید در دیگه کشورهای خارجی برم کار. हरगिज़ इसके बारे में नहीं लिखा. در این مورد مگر هیچ نوشته نشده. मेरे अपने मोहल्ले में मेरे इलाके में भी खुशखबरी का पैगाम सुनाना हम यीशु मसीह की दूसरी आमद की तैयारी कर रहे हैं. ما هم مگر در منطقه خود در علاقه خود در مورد آمدن دوباره عیسی مسیح آمادگی میگیریم. 그래서 파키스탄뿐만 아니라 이 자리에 와 있는 여러분들도 얼마든지 세계복음화에 귀하게 쓰임 받을 수가 있으십니다. और इसीलिए ना सिर्फ पाकिस्तानी शागिर्द जो यहाँ मौजूद है वो बल्कि जो दूर से आए हैं उनके लिए भी खुदावन जो है आप लोगों की मदद करेगा. تنها به دوستای پاکستانی نه که در اینجا هستن بله کسایی که از جای دور آمده در اون قسمت هم خداوند کمک میکنه. 주님은 반드시 재림하십니다. 그리고 재림의 특징이 이렇습니다. 라고 지금 말씀을 드렸습니다.
हमने अभी आपको बयान किया कि लाजमी तौर पर यीशु मसीह की दूसरी आमद होगी और यीशु मसीह की आमद के लिए हमें तैयारी करने की ज़रूरत है. و ما مگه را گفتیم که حتمی 100% عیسی مسیحی آمدنی است و ما به خاطر از او آمادگی میگیریم. 또 하나는 재림을 언약으로 이해할 필요가 있습니다. और इस बात को समझ लें कि यीशु मसीह की दूसरी आमद को अहद के तौर पर रिसीव करने की ज़रूरत है. و این به خاطر آمدن دوباره عیسی مسیح مانند عهد باید ما دوباره این را جذب کنیم بگیریم. 여호와 우리 하나님은 언약의 하나님이십니다. याद रखें कि हमारा खुदा यहोवा जो है वो अहद का खुदा है. و به یاد داشته باشین او خدای ما که است خدای عهد است. 그 하나님은 언약을 우리에게 주시고 그 언약대로 성취하십니다. वो जिस तरह उसने अपना अहद हमें दिया है वो अपने अहद के मुताबिक अपने काम को अंजाम देगा. طوری که او با ما تعهد کرده مطابق با تعهدش کارهای خود انجام میده. 그 하나님이 인간에게 언약을 주셨는데 인간이 언약을 깨뜨린 사건이 창세기 3장의 사건입니다. हम देख सकते हैं पैदाइश तीसरे बाब में कि खुदा ने इंसान को के साथ अहद बांधा लेकिन इंसान था जिसने उस अहद को तोड़ दिया. ما مگه دیدیم که را طوری که او با انسان عهد بست خداوند ولی انسان بود که او عهدش شکستان. 그래서 인간의 문제는 사단으로 말미암아 범죄하여 하나님을 떠난 것이 인간의 문제인데 이걸 다른 각도로 설명해 보면 언약을 놓쳐서 모든 문제가 왔다라고 얘기할 수 있습니다. इस बात को समझ लें कि इब्लीस की वजह से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह की वजह से हम खुदा से जुदा हो गए और ये सारा कुछ क्यों हुआ, किस बात का नतीजा है कि इंसान ने उस अहद को तोड़ दिया. و این واضح است که ابلیس میگه آدم منحرف ساخت و گناه کرد بعد از در نتیجه گناه جدایی با خدا پیدا شد و این همی باعث ازی شد که انسان عهد خود را شکست. 루카스 좀 읽어주세요. 여기 있습니다. 창세기 3장 루카 여기 있습니다. आइए हम कुछ हवाला जात पढ़ते हैं कलाम मुकद्दस में से. पैदाइश की किताब दूसरे बाब की 16-17 आयत पढ़ूंगा. और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है लेकिन नेक व बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा. उसके बाद तीसरे बाब की दूसरी और तीसरी आयत में कहता है औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदावंद ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना और वरना मर जाओगे. और तीसरे बाब की छठी आयत कहती है औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है तो उसमें से उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया. आमीन. 창세기 2장과 3장에 언약을 놓쳐서 모든 문제가 왔음에 대해서 얘기하고 있습니다. हम यहाँ देख रहे हैं कि पैदाइश की किताब तीसरे बाब में अहद के टूटने की वजह से इंसान की ज़िंदगी में सारे मसले पैदा हुए. اینجا ما میبینیم که به خاطر شکستاندن عهد که آدم عهد خود شکستان بسیار تمام مسائل پیدا شد. 그런 인간들에게 우리 주님이 다시 한번 우리에게 은혜 언약이라고 하는 언약을 다시 한번 우리에게 허락하십니다. और ऐसे लोगों के लिए खुदा ने एक और अहद बांधा और दोबारा उनको मौका दिया कि वो खुदा के अहद में दाखिल हों. و به این خاطر خداوند یک بار دیگر محبت که داشت عهد کرد دوباره زندگی ما رو تنظیم کنه. 그리스도에 대한 언약이고 그 그리스도를 믿는 누구나 구원받을 수 있다고 하는 그런 은혜의 언약입니다. और समझ लीजिए अहद जो है ये मसीह की बाबत है और मसीह पर ईमान रखने वाले सारे लोगों के लिए ये अहद दिया गया है. و این عهد به خاطر ازی است به خاطر مسیح است و این عهد به تمامگی داده شده. 그 그리스도의 언약 안에는 탄생부터 고난, 십자가, 생애, 십자가, 부활 다 이루어졌는데 딱 하나 주님의 재림의 약속만 아직 이루어지지 않았습니다. और इस मसीह के अहद में हम देख सकते हैं و در عهد مسیح ما میبینیم उसकी पैदाइश, که در پیدایش उसका जिंदगी का गुजारना, सलीब पर जान देना, زندگیش و رفتنش به मुर्दों में से صلیب जी उठना و از برخاستن از جمع مرده ها और अब जो चीज बाकी रह गई है वो उसकी दूसरी आमद है और वो भी जल्द و मुमकिन چیزی है. که باقی مانده آمدن دوباره از او است و این به زودی صورت خواهد گرفت. 그 모든 그리스도의 언약이 이루어졌지만 단 하나 주님의 다시 오심만 아직 이루어지지 않았기 때문에 이 언약은
반드시 이루어질 수밖에 없다는 것이죠. और क्योंकि उस मसीह के अहद की सारी बातें पूरी हुई सिवाय उसकी दूसरी आमद के, इसलिए जिस तरह पहले की बातें पूरी हुई हैं ये भी लाजमी तौर पर पूरी होगी. وایی طوری که در عهدهای سابقه گفته شده بود در عهد مسیح تمام عهدی که کرده بود همش پوره شد، فقط اینمی عهد آخری آمدن دوبارش مونده که هم پوره میشه. 우리 하나님은 언약의 하나님이시고 언약 하신 대로 반드시 성취하실 하나님이십니다. हमारा खुदा जो है वो अहद का खुदा है और जैसा वो अहद बांधता है वैसा ही अमल भी करता है. वो हमारा खुदा है. و او خدای ما که است خدای است که تعهد داره و طوری که تعهد کرده عمل کرده و او خدای ماست، کسی که متحد است با ما. 주님의 재림은 언약이기 때문에 반드시 이루어진다. 여러분 꼭 믿으시길 바랍니다. और हम चाहते हैं कि हम सब इस बात पर ईमान रखें कि जैसा खुदावंद यीशु मसीह का अहद है उसकी आमद का वो ज़रूर पूरा करेगा. و ما ای را ایمان داشته باشیم طوری که گفته شده او را او عهد عیسی مسیح حتما پوره میکنه. 디모데전서 1장 13절은 굉장히 중요한 구절입니다. 같이 한번 보겠습니다. पहला तिमोथियस उसका पहला बाब 13वीं आयत बहुत खास आयत है, इसके साथ स्टार बना ले. और इसमें लिखा है, अगरचे मैं पहले कुफर बकने वाला और सताने वाला और बेइज्जत करने वाला था तो भी मुझ पर रहम हुआ इस वास्ते कि मैंने बेईमानी की हालत में नादानी से ये काम किए थे. आमीन. 내가 전에는 비방자요 박해자요 폭행자였는데 왜 그랬냐면 내가 믿지 아니하였고 알지 못했기 때문에 그런 삶을 살았다고 얘기하고 있습니다. यहाँ पर पौलुस रसूल इकरार करता है कि पहले पुलिस रसूल इकरार میکنه که पहले मैं कुफर बकने वाला था, اول میگه من کفر सताने वाला था و बेइज्जत بودم बेइज्जत करने वाला था. و دیگرها را बेइज्जत میکردم. और ये मैं क्यों करता था, उसकी वजह क्या थी? ما چرا این کار میکردم؟ علتش چی بود؟ क्योंकि मुझे मालूम नहीं था, मैं नादानी में ये सारे काम करता به था. خاطر که من نمیفهمیدم، من در حالت نادانی کار 우리가 میکردم. 이 언약에 대해서는 먼저 정확하게 알 뿐만 아니라 올바로 믿어야 됩니다. हमें इस अहद के बारे में सिर्फ अच्छी तरह जानना ही नहीं है बल्कि इस पर ईमान भी रखना है. ما میگه به تنها هدف ما فهمیدن نیست، به خاطر از این هدف ما در کردن ایمان آوردن است. به 우리에게 주신 창세기 2장과 3장의 아담과 하와를 통해서 이걸 좀 설명해 드려보도록 하겠습니다. मैं चाहूँगा कि आपको मैं पैदाइश की किताब दूसरे और तीसरे बाब में आदम की कहानी से इस बात को समझाऊँ. شما میخوایم که برای شما در فصل اول دوم 이 قصه را برای شما بشنوم. 창세기 2장의 선악을 알게 하는 나무의 열매를 따먹지 말라, 먹으면 정령 죽으리라고 하는 약속을 아담에게 하나님이 허락해 주셨습니다. हम देख सकते हैं कि पैदाइश की किताब दूसरे बाब में खुदा ने एक अहद आदम के साथ बांधा जब उसने उस दरख्त को वहाँ कायम किया और कहा कि इसके फल में से ना खाना. ما مگه دیدیم که خداوند گفت امر کرده بود که از او درخت آدم نخوره. 그 약속을 받았을 땐 하와는 없었습니다. जब आदम को ये अहद दिया गया उस वक्त हवा उसके साथ नहीं थी. وقتی که یه عهد با آدم بسته بود در اون وقت هوا موجود نبود. 그 약속을 받았던 아담이 하와에게 이 약속을 전달했을 것입니다. और जब आदम ने इस अहद को हासिल किया और हवा को जब आदम के हवाले किया गया तो आदम ने ये अहद हवा को बताया. وقتی که این عهد صورت گرفت وقت هوا نبود. وقتی که هوا با وجود آمد این عهد به هوا گفت ولی هوا نافرمانی کرد. 하지만 창세기 3장의 Sorry. 뱀의 질문을 보면 नाफरमानी. हवा जब आदम के पास आई तो आदम ने ये अहद हवा को बताया. میگه وقتی که هوا پیش آدم آمد آدم به هوا این حرف زد، امی عهد برش بیان کرد. 창세기 3장의 뱀의 질문에 대답한 하와의 대답을 보면 아담이 가지고 있던 약속과는 많이 다르다는 것을 알 수 있어요. और हम तीसरे बाब में देखते हैं و ما در فصل سیوم میبینیم कि जब सांप हवा के पास आता है وقتی که مار और उससे सवाल करता है و از او سوال میکنه तो हवा का जो जवाब है वो जवाब बिल्कुल वो- खुदा के हुक्म के से बिल्कुल हटके है, अलग है, अलहदा है. و جواب که فرق هوا با مار میته او بیخی با امر خدا جدا بود، یعنی مطابق با او نبود. 그래서 뱀의 시험에 하와는 언약을 정확하게 몰랐기 때문에 뱀의 시험에 넘어갔다라고 볼 수가 있습니다. और इसीलिए क्योंकि हवा उस अहद से नावाकिफ थी पूरी तरह से به خاطر که هوا به شکل درست
واقف نبود از این موضوع. इसीलिए वो अबलीस के बहकावे में आ जाती है. از این خاطر او ابلیس میتونه که بالا از او نفوذ کنه او را بازی بده. 하지만 그 상황을 봤던 아담은 언약을 정확하게 알고 있었지만 벌어지는 상황 때문에 믿음에서 실패하게 되었습니다. और हम देखते हैं कि आदम जिसको खुदा ने अहद दिया था, و ما میبینیم که آدم طوری که با خدا عهد کرده بود और इसके बावजूद वो अहद उसके पास था. जब वो सामने हालात को देखता है و او در عهد خود بود که وقتی که حالات را میدید तो उसका ईमान हमें जाता नजर आता है. و ایمان از او ضعیف به نظر میرسه. 그래서 언약에 대해서 하와는 정확하게 몰라서 실패했고 아담은 정확하게 알았지만 믿지 않아서 실패했다고 말할 수 있습니다. तो हमें यहाँ नजर आता है कि हवा क्यों फेल हुई? क्योंकि उसे अहद के बारे में मालूम न था. و ما اینجا میبینیم هوا چرا بازی خورد؟ به خاطر که در مورد عهد دقیق نمیفهمید. और आदम क्यों गिरा? آدم چرا در جال افتاد؟ गो कि उसको अहद के बारे में मालूम था लेकिन उसने उस पर ईमान नहीं रखा. با وجودی که برش معلوم بود و او ایمان خود محکم کرده نتونست. 그래서 디모데전서 1장 13절에 바울의 말처럼 내가 믿지 않고 알지 못해서 실패한 것이다 라고 하는 것이 아담 하와에게도 똑같이 적용된다는 얘기죠. और इसीलिए पौलुस रसूल तिमोथियस के खत में बताता है و پولس رسول را میگه कि मैंने ये सारे काम क्यों किए? क्योंकि मैं नादान था, मुझे मालूम न था. که ما چرا این کارا را کردم؟ به خاطر از اینکه من نمیفهمیدم. और पौलुस की ये हालत हमें आदम और हवा की कहानी के बाबत बताती है जो बाग अदन में थी. و امی حالت پولس حالت آدم و حوا را به یاد ما میاره. 그래서 언약을 정확하게 알지 못하고 믿지 아니하여서 언약을 놓치면 큰 문제가 일어나는 것입니다. इसलिए समझ लें इस बात को कि अगर आपको अहद के बारे में नहीं पता و این را میگه بفهمین اگر بر شما در مورد عهد معلومات और ندارید अगर आपको मालूम है और आप ईमान नहीं रखते و بر شما معلوم است و شما ایمان ندارین तो आपकी जिंदगी में एक बड़ा मसला पैदा हो सकता है. و در زندگی شما مشکل بسیار بزرگ پیدا میکنه. 그래서 재림은 마지막 언약이기 때문에 정확하게 알아야 되고 진실로 믿어야 되고 온전히 순종해야 합니다. और तो इसलिए समझ लें कि यीशु मसीह की दूसरी आमद जो है वो अहद है. و این را میگه بفهمین این آمدن دوباره عیسی مسیح یک تعهد است. इस अहद को जानना होगा और इस पर ईमान लाना होगा. ما این عهد باید بفهمیم و به او ایمان داشته باشیم. 정확하게 아는 부분이 데살로니가서 4장 16절부터 17절로 다 같이 한번 और अगर आप इसको अच्छी तरह समझना चाहते हैं اگر شما به شکل خوب میخواین این را بفهمید तो हमें पहला तिसलुकियों और उसका चौथा बाब 16वीं 17वीं आयत नजर आती है. آیه دیگه میگه به نظر ما میرسد تسلیکسیون. और इसमें यूं लिखा है, در اینجا نوشته است که पढ़िएगा जी. بخوانین क्योंकि खुदा आसमान से बेशुमार और मुकर्रर फरिश्ते की आवाज और खुदा के नज़ीर के साथ उतर आएगा और पहले लोगों जो मसीह में हुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ आसमान में उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इसी तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे. 반드시 우리 주님은 강림하실 것이고 우리가 그분을 만나게 될 것입니다. लाजमी खुदावंद यीशु मसीह दोबारा आएंगे और हम उनसे मुलाकात करेंगे. حتما عیسی مسیح دوباره میاد و ما با او ملاقات میکنیم. 그리고 이 사실을 진실로 믿어야 합니다. इसलिए इस हकीकत को पूरे ईमान के साथ मानना होगा. و از این خاطر این حقیقت باید با ایمان کامل ما قبول کنیم. 베드로서 3장 12절. आइए अगला हवाला देखते हैं. दूसरा آیه पत्रस دیگر را میگه میبینیم तीसरे बाब की 12वीं आयत. فصل 2 پتروس जी. آیه 3 الی 12. और खुदा के उस दिन के आने का कैसा कुछ और मुश्ताक रहना चाहिए जिसके बायस आसमान आग से पिघल जाएंगे और अजामे फलक हरारत की शिद्दत से गिर जाएंगे. आमीन. 이 재림에 대한 언약을 정확하게 알고 진실로 믿는다고 하면 자연스럽게 온전히 순종할 수밖에 없습니다. इस बात को समझ लें कि अगर आप इस अहद को जान लेंगे, इस पर ईमान ले आएंगे तो लाजमी है कि आप इसकी फरमाबरदारी करेंगे. इसके अलावा हमारे पास कोई और राह नहीं है. این را میگه بفهمین اگر شما این را میفهمین و به این پابند هستین و به این ایمان دارین
وی لازمی موضوع از این عبارت از فرمانبرداری شماست. 사도행전 20장 24절에 마치 사도 바울이 그러했던 것처럼 우리도 그렇게 순종하며 살게 될 것입니다. जिस तरह हमें अमाल की किताब 20 बाब की 24वीं आयत में नजर आता है कि पौलुस रसूल इस ईमान के साथ जीता है, हमें भी वैसे ही जीना होगा. طوری که به ما معلوم میشه در اعمال که پلیس رسول امو رقم به ایمان آورده و زنده است، ما همچنان امو رقم وقتی که ایمان آوردیم زنده خواهیم بود. आइए देखते हैं कि यहाँ क्या लिखा है जी. लेकिन मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता अच्छा ठहरिए, मैं पढ़ूंगा. यू हैव टू डू टुगेदर. लेकिन मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता میگه من هیچ وقت جان خود را شیرین فکر कि نمیکنم उसकी कुछ कदर करूं که قدر از او را کنم बामुकाबला इसके با مقابله این که कि अपना दौर और अपनी खिदमत در دوره خود در زمان خود و در जो خدمت खुदावंद خود यीशु से पाई है چیزی که از خداوند عیسی مسیح گرفته पूरी करूं, او را تکمیل کنم، یعنی که खुदा के फजल की खुशखबरी की गवाही दूं. یعنی که به فضل Underline خداوند کنید इसको. خوشخبری بتم. 세 번째는 우리 주님은 언약대로 주님의 재림을 성취하실 것입니다. यहाँ हम देख सकते हैं कि खुदा यीशु मसीह अपने वादे के मुताबिक दोबारा वापस आएंगे. اینجا میگه ما میبینیم خداوند عیسی مسیح مطابق به وعده خود دوباره میاد. 세 구절 다 같이 읽어보겠습니다. आइए अगली जो 3 आयत हैं ये हम सब मैं एक साथ पढ़ देता हूँ. بیایم میگن 3 آیات دیگه از یک جا میخوانم. मुकाशवा की किताब 22 बाब 12 आयत कहती है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है. 22वें बाब की 13वीं आयत कहती है, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं अल्फा और ओमेगा अव्वल और आखिर इब्तदा और इंतहा हूँ. और उसके बाद 20वीं आयत कहती है 22वें बाब की, जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है कि बेशक मैं जल्द आने वाला हूँ. आमीन. ऐ खुदावंद यीशु. हाँ. 이 주님은 반드시 다시 오신다. यीशु हमारे खुदावंद जो है वो जल्द वापस आएंगे, लाजमी वापस आएंगे. خداوند ما که از حتما به زودی میاد و حتمی میاد. 주님의 재림은 이런 몇 가지 특징이 있다. और हमने देखा कि उनकी दूसरी आमद के बारे में कुछ खसूसियात हैं जो و हमने ما دیدیم که در مورد آمدن از او بعض خصوصیات وجود داره. 주님의 재림은 마지막 언약이다. और हम ये जानते हैं कि यीशु मसीह की दूसरी आमद जो है वो आखिरी अहद है. و ما این را میفهمیم آمدن دوباره عیسی مسیح که است و آخرین تعهد است. 그래서 주님의 재림에 대해서 정확하게 알고 진실로 믿고 온전히 순종하는 여러분들 되시길 바랍니다. और इसीलिए हमारी ये दुआ है कि आप खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के अहद को पूरी तरह से जानें, و ما این دعا میکنم که آمدن دوباره عیسی مسیح را उस पर بفهمیم، ईमान रखें با او ایمان داشته باشین और पूरी फर्माबरदारी के साथ و با فرمان इस برداری अहद में کامل अपनी जिंदगी को गुजारें. در این عهد در این تعهد زندگی خود را بگذرانید. 자, 27강 보겠습니다. आइए हम 27वें लेक्चर की तरफ जाते हैं. بیاین لکچر 27 میبینیم. 그런데 우리 주님은 다시 오시는데 우리 세대에 오신다고 말씀하셨습니다. खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो लाजमी वापस आएंगे خداوند عیسی مسیح میگه گفته که او حتما میاد और वो हमारे ही दौर में आएंगे. इसके बारे में कलाम मुकद्दस में कुछ लिखा है. و این در این دور ما میاد. در این مورد در کتاب مقدس چیز نوشته است. आइए हम शुरू की 3 आयत को पढ़ देते हैं. بیایم اگر ما 3 آیات را میخوانیم. मत्ती की इंजील 10वें बाब की 23वीं आयत कहती है, लेकिन जब तुम एक शहर में सताए भी लेकिन जब तुमको एक शहर में सताएं तो दूसरे को भाग जाओ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम इसराइल के सब शहरों में ना फिर चुकोगे कि इब्ने आदम आ जाएगा. 16वें बाब की 28वीं आयत में कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से बाज ऐसे हैं कि जब तक इब्ने आदम को उसकी बादशाही में आते हुए ना देख लेंगे, मौत का मज़ा हरगिज़ ना चखेंगे. 24वें बाब की 34वीं आयत में कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें ना हो लें ये नस्ल हरगिज़ तमाम ना होगी. आमीन. 나머지 두 구절도 위에 세 구절과 같은 내용입니다. जो आगे की 2 आयत हैं वो भी ऊपर वाली आयत से मिलती जुलती हैं. میگه 2 آیات دیگه که است و میگه با 3 آیات بالا ارتباط داره. 이 말씀은
단순히 사도들에게만 주신 말씀이 아니라 우리 모든 세대에게 주신 말씀입니다. इस बात को समझ लें कि ये जो हमने कलाम का हिस्सा पढ़ा है ये सिर्फ शागिर्दों से कलाम नहीं किया गया बल्कि तमाम नस्लों से तमाम दौर के लोगों से बात की गई है. این کلام را که میگم ما خواندیم تنها کلام نبود که به شاگردا گفته شده بود به تمام عالم بشریت است. 우리 모든 세대들은 우리 세대에 주님 오신다고 믿고 그 일을 위해서 살아가는 것이 올바릅니다. इसलिए तमाम दौर के लोगों को इस बात को समझ लेना चाहिए تمام مردم میگه باید را بفهمه कि उनको इस तरह जिंदगी गुजारनी है कि जैसे यीशु मसीह इसी दौर में आने वाले हैं. و میگه طور باید زندگی کنند که در همین دورشان عیسی مسیح آمدنی است. 먼 미래에 오시고 우리 세대에 안 오시고 우리 다음 세대는 먼 미래에 오신다고 생각하는 것이 올바르지 않습니다. याद रखें कि ये बात बिल्कुल नामुनासिब है कि यीशु मसीह किसी बाद के दौर में आएंगे, दूर के दौर में این आएंगे. میگه نامناسب است کسی فکر کنه که در دورهای بعدی عیسی مسیح हमारे दौर में नहीं बल्कि किसी और दौर में आएंगे. در دوره ما نه بلکه در یک دوره دیگه خواهد ये ईमान गलत ईमान है. این ایمان غلط است. 내 살아 계신다, 내 살아 있을 때 주님 오신다고 믿고 내가 이 땅에 죽을 때까지 그렇게 믿고 살다가 가는 것이 헛수고가 아니라 이게 가장 건강하고 온전한 신앙입니다. याद रखें कि मेरे ही दौर में मसीह यीशु आएंगे, به یاد داشته باشین که در دور ما و شما عیسی مسیح میه मेरे ही दौर में यह अहद पूरा होगा در دور ما این تعهد پورا میشه और मैं पूरी फर्माबरदारी के साथ अपने दौर में ما با تمام فرمان इस برداری अहद के लिए जीऊंगा. به خاطر یاد زندگی میکنم. यही हकीकी ईमानदार की जिंदगी है این همی زندگی حقیقی और ठीक ایماندار ईमान است है. و ایمان درست کامل ایمان است. ایمان درست است. 우리 세대에 오신다고 믿는 것이 바른 믿음입니다. समझ लें कि मेरे ही दौर में मसीह यीशु आएगा, ये बिल्कुल दुरुस्त ईमान है. و میگه امیر بفهمین که در دور ما عیسی مسیح میه ایمان درست است. 바울과 야고보와 베드로를 통해서 설명드려 보겠습니다. पौलुस के वसीला से, पतरस के वसीला से, با وسیله پولس به وسیله پترس याकूब के वसीला से با وسیله یعقوب मैं आपको इस बात को समझाना चाहूंगा. ما در مورد از این موضوع شما را میفهمانم. 우선 사도행전 20장 24절과 19장 21절을 다 같이 읽어 주십시오. आइए हम सब मिलकर ये दो आयत जो हैं दूसरे हिस्से की अमाल 20वें बाब की 24वीं आयत और 19वें बाब की 21वीं आयत इनको पढ़ेंगे. این آیات‌ها را میگه همگی بخوانه. जी. اعمال آیه 20 فصل 20 آیه 24 ایران بخوانه. लेकिन लेकिन मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता कि उसकी कुछ कदर करूं बामुकाबला के अपना दौर और वो मिलत जो खुदावंद यीशु से पाई है पूरी करो यानी खुदा के फजल की खुशखबरी की गवाही. और इसके बाद 19वें बाब की 21वीं आयत पढ़ेंगे. जी. जब ये हो चुका तो पालूस ने जी में ठाना के मकदूनिया और अखिया से होकर यरूशलेम को जाऊंगा. जब और ये कहा, काम- वहाँ जाने के बाद मुझे रोमा जब ये हो चुका, अच्छा जब ये वो साथ आ गए, जब ये हो चुका. 사도 바울은 사도행전 20장 24절에 보면 그냥 열심히 전도한 것이 아니라 끝내려고 했습니다. 마치려고 했습니다. यहाँ पर समझ लें कि 20वें बाब की 24वीं आयत में बहुत शिद्दत के साथ मुनादी का काम करने की बात नहीं हो रही. میگه این را بفهمن که به بسیار شدت با تبلیغ نشده. अपनी जिंदगी में तबलीग करने मुनादी करने की बात हो रही है. در زندگی خود ما میگه باید ما تبلیغ کرده بریم. 그래서 사도 바울은 항상 끝을 설정해 두고 달려갔습니다. और इसीलिए पौलुस रसूल ने अपने लिए दुनिया की इंतहा की हद ठहराई और कंटिन्यूसली उसकी तरफ अपनी जिंदगी को गुजारता चला गया. و پلیس رسول میگه در جایی که استاد شد آهسته در مورد زندگی خود نزدیک شده رفت به او. 그때 당시 사도 바울 입장에서 육신적으로 땅 끝은 지리적으로는 스페인이었습니다. और उस वक्त के दौर में पौलुस के लिए जो दुनिया की इंतहा थी वो स्पेन था. و در او وقت که در انتهای دنیا که بود برای پلیس رسول کیه؟ 그리고 사람으로서의 땅 끝은 가이사였습니다. और इसीलिए 사람 사람. 그러니까 네. 사도 바울은 가이사 앞에 가야 된다. 로마에 네네네. 가야 된다. 네네. 스페인으로 가야 된다. 이게 땅 끝이라고 하는 개념으로 और इसीलिए हम देखते हैं و कि به این पौलुस خاطر रसूल ما जो है می‌بینیم که پلیس رسول वो जो भी उस दौर की हुकूमतें थीं उन तक जाना और उनके बाद دور स्पेन तक जाने की حکومت‌هایی बात که करता بود है. پیش از اونا میرفت و حرف میزد. काइफस और बाकी लोगों के सामने पेश होता नजर आता है. در مورد دیگرها
काइफस एक जज का बादशाह का नाम था, طایفالس میگه نام پادشاه بود उसके सामने जाके वो अपनी در مقابل ईमान از का اون इकरार میرفت करता है। اقرار میکرد और फिर یعنی उसके बाद تبلیغات میکرد वो सारी मुश्किलों के बावजूद वो स्पेन तक با जाता وجود تمام مشکلات بر از اونا خوشخبری را میرسان تبلیغ میکرد 그래서 열심히 전도한 것이 아니라 정말로 마치려고 세계복음을 끝내려고 했던 사람이 사도 바울입니다. और इसलिए हमें नजर आता है कि पौलुस रसूल जो है वो शिद्दत से मुनादी नहीं करता बल्कि अपने दौर में इस काम को पूरा करने की कोशिश करता है। و پولس رسول این را نشان میده که در دوره خودش نه تنها به شدت کار میکرد، میخواست که یمی را مکمل کنه. 고린도전서 7장 29절 이 한 구절만 읽어주세요. 고린도후서 7장 고린도전서 7장 그 다음 구절이거든요. 7장 29절. जी अगला हम हवाला देखेंगे पहला करंथियों उसका 7वां बाब और उसकी सिर्फ 29 आयत पढ़ूंगा, فصل 7 به آیه 29 الی 30 که بخونه. सिर्फ 29 आयत। मगर ए भाइयों, आइए मिलकर مگر ای पढ़ते हैं। برادرها मगर वक्त तंग है, बस आगे को चाहिए कि बीवी वाले ऐसे हों वह उनकी बीवियां नहीं। थैंक यू, आमीन। 그때가 단축하여졌다 이렇게 표현했어요. क्या कहता है इंजन कि चिमनी का- वक्त तंग है। وقت کم است میگه. 세계복음화가 되면 주님 오시는데 이 사람이 열심히 복음 전한 거죠. 그러다 보니까 이때가 가까워졌다, 단축되졌다 이렇게 표현한 겁니다. हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मौलवी पौलुस रसूल जदीदा में कहता तो है नहीं, पुलिस रसूल मेगा कि मैं जैसे ही फला जगह तक पहुंचूंगा और यीशु मसीह आ जाएगा فلان فلان جای میرم और यीशु मसीह आ जाएगा و عیسی مسیح میاد और इसलिए वक्त बहुत तंग है। و از این خاطر وقت بسیار کم است. 이게 사도 바울이 내 살아있을 때 세계복음을 완성하겠다고 하는 그분의 믿음이었습니다. और इसी तरह हम देख सकते हैं कि पौलुस रसूल का ईमान था कि मेरे दौर में दुनिया की इंतहा तक खुशखबरी का पैगाम पहुंचे। و پولس رسول ایره ایمان داشت که در عالم دور بشارت. خودش در تمام دنیا خوشخبری میرسه हाँ, आलमी बशारत का ख्याल उसके दिल में था। و همیشه همین حب بشارت در دلش بود. 야고보 5장 7절부터 8절 통해서 야고보의 신앙도 보겠습니다. आइए हम याकूब के ईमान को देखते हैं। याकूब का بیاین खत ایمان 5वां बाब یعقوب رو میبینیم 5वां बाब 7वीं और 8वीं आयत। در فصل 5 آیه 7 و 8. 야고보 5장 7절. नहीं ओके नहीं बस है भाइयों, खुदावंद की आमद तक सब्र करो। تا آمدن خداوند صبر کنه. देखो ببینین किसान जमीन की कीमती पैदावार का इंतजार دهقانا میگه منتظر پیداوار قیمتی زمین هستن، कीमती पैदावार के इंतजार में در انتظار پیداوار زمین पहले और पिछले मीघ के बरसने तक सब्र करता है। از قبل و بعد صبر میکنن बारिश के होने तक सब्र به करता है। خاطر باران. तुम भी सब्र करो تو هم صبر کو और अपने दिलों को मजबूत و دلت محکم کو، मजबूत रखो محکم نگه دار क्योंकि खुदावंद की आमद करीब है। به خاطر که آمدن خداوند نزدیک است. 초대교회 기둥 같은 사람이 그 리더가 야고보였습니다. हम देखते हैं कि इब्तदाई ما कलीसिया میبینیم का که एक در लीडर کلیسا ابتدا जिसे हम याकूब के नाम से जानते हैं, که ما او را به نام یعقوب میشناسیم، ये उसने कलाम लिखा है। این کلام او نوشته، उसके वसीले से लिखा गया, उसके वसीले से लिखा به गया। وسیله از او نوشته شده. 점점 교회에 대한 핍박이 심해지는 때였습니다. ये ऐसा दौर था कि जिस वक्त कलीसियाओं पे मुसीबतें टूटना शुरू हो गई थी। این اونم دوره بود که مصیبت ها در کلیسا شده بود که کلیسا از هم جدا می شد، یعنی پراگندگی وجود داشت. 여러 가지 경제적인 어려움을 겪고 또 감옥에 잡혀가기도 하고 감옥에 잡혀가서 순교를 당한 일이 교회에 허다하게 일어났습니다. इस दौर में कलीसिया के लिए در این دور مگه کلیسا फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स शुरू हो गई थी, रुपए की तंगी शुरू हो गई थी। مشکلات پولی پیدا شده بود در کلیسا. ईमानदारों को कैद खानों में डाला जा रहा था, ایماندارا را در زندان می انداختن यहाँ तक कि कैद खानों में उनको हलाक किया जा रहा था। تا اندازه که اونا در داخل زندان هلاک می شدن. 그래서 교회에 있는 사람들이 많이 어려움을 당하고 있는 와중에 야고보가 그들을 위로하면서 위로의 내용이 딴 것이 아니라 주님이 강림하실 것이니 참으라고 얘기합니다. और फिर ये लोग जब
अपनी तकलीफ का इजहार करते हैं وقتی که اونا درد خود را اظهار میکنن، तो याकूब जो उनका पासबान है وقتی یعقوب پاسبان از اوناست، محافظ वो از उनको اوناست، तसल्ली देने के लिए और बढ़ावा देने के लिए به خاطر تسلیت از اونا، به خاطر उनके ذکر ईमान को اونا، बढ़ाने के लिए به خاطر قوی کردن او उनसे ایمانشان، कहता है कि थोड़ा सा सब्र करो به اونا मसीह की میگه आमद که کم، नजदीक है به اونا میگه کم صبر کنین، مسیح میاد. 그래서 그때 당시에 주님의 강림에 대한 약속은 알아야 될 여러 가지 이론 중에 하나가 아니라 모든 신앙을 받쳐주는 약속이었습니다. और समझ सकते हैं कि و जो میفهمن जो ईमान उस कलीसिया को दिया गया, लोगों को दिया गया उस दौर के, و این را میفهمیم طوری که ایمانی که به او کلیسا داده شده بود، उसमें यीशु मसीह की दूसरी आमद कोई एक अलग हिस्सा नहीं है, او میگه یک بخش جدا از آمدن عیسی مسیح نیست، बल्कि जितना उनका ईमान है उन सब की बुनियाद यीशु मसीह की दूसरी आमद की उम्मीद पर है. و هر قدر کس امید هر کس با ایمان داره که به آمدن دوباره عیسی مسیح. 여러분 틀림없이 주님은 강림하십니다. 이 약속을 붙들고 여러분들도 초대교회 성도들처럼 신앙에 승리하시길 바랍니다. मेरे अजीजों, आप अजीजों, सबसे भी मैं- दरख्वास्त है از آن شما خواهش میکنم कि जिस तरह इब्तदाई कलीसिया अपने ईमान की प्रैक्टिस अपने ईमान को अमल में लाती है طوری که کلیسا ابتدایی ایمان خود را چه और यीशु میکنه मसीह की दूसरी आमद का इंतजार करती है, و منتظر آمدن دوباره उसी عیسی तरह हम भी مسیح است. इब्तदाई कलीसिया की तरह ما هم باید مانند کلیسا अपने ابتدایی ईमान को यीशु मसीह की दूसरी आमद ایمان पर, خود را به خاطر दूसरी आमद की उम्मीद पर با امید آمدن دوباره قائم عیسی رکھیں. مسیح قائم کنیم और तरक्की करें. و پیش بریم. 주님은 강림하셔서 여러분의 눈물을 닦아주실 것입니다. जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे वो وقتی आपके सारे خداوند आंसू عیسی पोंछ مسیح देंगे. عیسی میاد، اشکای همه شما را پاک خواهد کرد. 주님은 강림하셔서 여러분들에게 잘했다 칭찬해 주실 것입니다. जब यीशु मसीह आएंगे तब वो आपसे कहेंगे, आ मेरे अच्छे खादिम मेरे साथ मेरे आरामगाह में दाखिल हो. وقتی که عیسی مسیح میاد و برات میگه که بیا ای خادم خوب من و 주님은 با هم بریم. 강림하셔서 여러분들을 하늘나라의 왕으로 세우실 것입니다. जब यीशु मसीह आएंगे तो वो अपनी बादशाही में आपको बादशाहत अता फरमाएंगे. وقتی عیسی مسیح میاد میگه تو را در پادشاهی خود منعکس پادشاه میبره. 그래서 그리스도이신 예수께서 반드시 다시 오신다고 하는 이 신앙이 여러분의 삶을 버티게 유지할 수 있게 할 수 있습니다. और इसीलिए यीशु के मसीह होने का ईमान به این خاطر میگه ایمان داشتن به عیسی مسیح आपकी जिंदगी को तरक्की बख्शने के लिए, به خاطر ترقی شما در زندگی، आपकी मदद करने के लिए, به خاطر کمک به شما، हमेशा आपके साथ रहना जरूर है. همیشه با شما بودن ضروری است. 자, 우리 베드로후서 3장 12절만 보겠습니다. अगला हवाला काफी लंबा में नजर आता है. दूसरा पत्रस तीसरा बाब उसकी 8वीं से 13वीं आयत तक. शिब समझा 12절. शिबी پطرس دو فصل 3 آیه 8 تا 13 یک ذره طولانی است. हम इसकी सिर्फ 12वीं आयत पढ़ेंगे. تنها آیه 12 ش میخوانیم. 하나님의 날이 임하기를 As you look from the 간절히 day. 사모하라. नहीं चंकमानियो. As you look forward to the day of God and speak its coming. यहाँ पे नंबर नहीं है. भूलोगा अफसोस हो. आइए मैं पढ़ता हूँ. हाँ, लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आएगा. اما روزی که خداوند ناگهانی میاد، उस दिन आसमान बड़े शोरगुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और अजराम फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और ज़मीन और उस पर के काम जल जाएंगे. जब ये सब चीज़ें इसी तरह पिघलने वाली हैं तो तुम्हें पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा कुछ होना चाहिए. आगे 12वीं आयत है. और खुदा के उस दिन के आने का कैसा कुछ मुंतजर और मुश्ताक रहना चाहिए जिसके बाइस आसमान और ज़मीन और जराम फलक ने पिघल जाएंगे. 하나님의 날이 임하기를 바라보고 간절히 사모하라. 이게 베드로의 신앙이었습니다. ये पतरस का ईमान था जिसमें वो कहता है ایمان پطرس است که او میگه कि खुदावंद के उस दिन का मुंतजर होना जरूर है. که منتظر او روز باید باشیم خداوند میاد. 사도 바울은 주님이 세계복음화 되면 주님 오시기 때문에 세계복음화를 끝내려고 했었고요.
और इसीलिए हम देखते हैं कि पतरस भी जो है यीशु मसीह की आमद को देखने के लिए दुनिया की इंतहा तक खुशखबरी के पैगाम को फैलाता नजर आता है। و ایره میبینیم اگه پتروس هم تا انتهای دنیا به خاطر خوشخبری ایمان داره کار میکنه. 야고보는 고통당하는 모든 교회들을 향하여 주님이 곧 오시니 조금만 참으라고 얘기했고요. और पतरस भी अपनी कलीसियाओं से कहता है कि यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं, و थोड़ा सा پتروس هم सब्र به करो। کلیسای خود میگه که عیسی مسیح بسیار زود میاد صبر داشته باشه. 베드로는 그 하나님의 나라를 간절히 사모하라고 얘기했습니다. पतरस अपनी कलीसिया से कहता है कि पतरस यीशु मसीह बकलीसिया लाजमी खुद- आएंगे, پتروس به کلیسای خود میگه که عیسی مسیح حتما میاد. इसीलिए उसके मुंतजर रहो। از این خاطر انتظار بکشیم. 이게 우리 세대에 주님 오신다고 믿는 믿음의 모습입니다. ये हमारे दौर में मसीह आएगा, इस ईमान को दिखाया गया है, जाहिर करना है। این میگه ایمان باید ما ظاهر بسازیم که عیسی مسیح حتما میاد. 우리 모두가 성경대로 이 믿음 가운데 거하게 되길 예수 이름으로 축원합니다. हम चाहते हैं कि खुदा आपको बरकत दे ما میخوایم که خداوند شما را برکت और بده आप इस ईमान के साथ यीशु मसीह की आमद के و इंतजार شما में با अपनी این जिंदगी को ایمان गुजारें। به آمدن عیسی مسیح انتظار بکشید. 그래서 우리 세대에 주님 오실 걸 믿고 우리 세대에 우리 손으로 세계 복음을 완성하는 것이 주님이 원하시는 것입니다. और इसीलिए खुदावंद चाहता है कि हम و از ऐसे این خاطر जिएं خداوند میخوایم ما طور زندگی کنیم कि जैसे हमारे ही दौर में आलमी बशारत का काम खत्म होगा, طوری که در دور ما بشارت عالمی ختم میشه हमारे ही हाथों से दुनिया के इंतहा तक खुशखबरी का काम تا पूरा होगा। انتهای دنیا توسط ما خوشخبری برسد. 이것은 재림의 언약을 믿고 순종하는 삶입니다. इसका मतलब क्या है مطلب از این چی است؟ कि हम यीशु मसीह की दूसरी आमद के अहद को मानते हैं ما در دور خود آمدن عیسی مسیح را और قبول उसकी داریم फर्माबरदारी के साथ जिंदगी गुजारते हैं। و با فرمان برداری از او زندگی خود را میگذرانیم. 마가복음 16장 19절에 20절에 보면 제자들이 그런 삶을 살았고 그런 삶을 사는 제자들을 우리 주님이 축복하시는 내용이 나옵니다. अगर हम अगला हवाला देखें मरकज की अंजील 16 बाब की 19वीं और 20वीं आयत में, तो हमें वहाँ नजर आता है कि शागिर्द इस ईमान के साथ अपनी जिंदगी गुजारते रहे। و ما در این آیت دیگه که میبینیم در آیت آخر که در این بر ما میرسه که ما انتظار از او را میکشیم که با عیسی مسیح آمدنی است و आइए تبلیغ मैं पढ़ देता हूँ। गर्ज खुदावंद यीशु उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठाया गया और खुदा की दाहिनी तरफ बैठ गया। फिर उन्होंने निकलकर हर जगह मुनादी की और खुदावंद उनके साथ काम करता रहा और कलाम को उन मौजज़ों के वसीला से जो साथ साथ होते थे साबित करता रहा। आमीन। एक्सप्लेन कर सकते हो? ये हम भी ट्रांसलेट करें इसको? कर सकते हो या सिर्फ समझा दो अगर। नहीं ऐसे आप बोलो हम अच्छा ट्रांसलेट कर. बोले 19 बस बता दो। गर्ज खुदावंद यीशु उनसे कलाम करने के बाद خداوند عیسی مسیح بعد از کلامش आसमान पर उठाया गया بس به آسمان برداشته شد और رفت खुदा की दाहिनी तरफ बैठ गया। و در جنای راست خداوند نشست در تخت خدا फिर उन्होंने निकलकर हर जगह मुनादी की و در هر جای رفت و تبلیغات کرد और खुदावंद मौजज़ों के वसीला से उनके साथ साथ रहा। و خداوند با معجزه‌اش همه کارهای او را پیش برد. 우리 세대 우리 손으로 세계 복음을 이루는 것이 우리의 결론이고 목적이고 방향입니다. हमारे ईमान का नतीजा, نتیجه ایمان ما हमारे निजात की सिमत, همون نجات ما हमारे निजात का मकसद مقصد از نجات ما और हमारे ईमान की सारी तकदो و تمام تقاضای ایمان ما इस बात पर मुबनी है و مبنی بر این कि हम अपनी گپ است दौर में कि आलमी मौजूदा बशारत दौर- के काम को की फर्माबरदारी करेंगे। که ما فرمان برداری کنیم با تمام بشریت. 4번에 어떻게 이것을 이룰 수 있는가? 4번 결론적으로. आइए आखिरी जो हिस्सा है इसका, ये किस तरह से पूरा किया जा सकता है, قسمت آخر مگه اینجا گفته چطور इस پورا आयत को شده किस तरह मुकम्मल कर सकते हैं? नहीं, 성경 그대로 하면 됩니다. जैसा कि बाइबल में लिखा है एग्जैक्टली वैसा कीजिए। چطور ما تکمیل کرده میتونیم طوری که در کتاب مقدس 성경 نوشته است. 그대로의 복음이며 성경 그대로의 전도라고 하면 성경 그대로의 역사가 일어나는 것입니다.
अगर बाइबल मुकद्दस खुशखबरी है अगर किताब मुक़द्दस खुशखबरी است तो खुशखबरी के ऐन मुताबिक अमल कीजिए तो पस मुताबिक बा खुशखबरी अमल करें और कलाम मुकद्दस के ऐन मुताबिक व मुताबिक बा कलाम मुक़द्दस हम ईमान के नताइज को देखेंगे ما नतीजे ईमान می‌بینیم. 요한복음 5장 39절에 예수님은 이 성경은 나에 대한 정언이라고 얘기했습니다. यूहन्ना की अंजील 5वें बाब की 39वीं आयत में در فصل 5 یوحنا میگه آیه 39 यीशु मसीह कहते हैं कि ये कलाम मुकद्दस मेरी गवाही है। عیسی مسیح میگه که کتاب مقدس شهادت است. 그리고 요한복음 20장 31절은 조금 더 구체적으로 이 성경에 기록된 이유는 예수님이 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 함이라고 되어 있습니다. और यूहन्ना की अंजील 20वें बाब की 31वें आयत में و در انجیل یوحنا از در فصل 20 آیه 31 हमें थोड़ी और वजाहत के साथ मिलता है کم وضاحت داده شده कि यीशु खुदा का बेटा मसीह है که عیسی پسر خداوند مسیح است और हमें इस बात पर ईमान लाने की ज़रूरत है। و ما ضرورت داریم به ایمان بیاریم. 예수님이 하나님의 아들 그리스도이시다. 이것이 성경의 복음입니다. बाइबल मुकद्दस की खुशखबरी क्या है کتاب مقدس میگه خوشخبری چی است؟ कि यीशु खुदा का बेटा मसीह है। که عیسی پسر خداوند مسیح است. 성경의 전도는 전 세계를 살리는 것입니다. बाइबल मुकद्दस की खुशखबरी पूरी दुनिया को बचा सकती है। خوشخبری کتاب مقدس در تمام دنیا رسیده میتونه. 전부를 살리는 키는 그 안에 있는 제자를 찾는 것입니다. और इस सारी दुनिया को बचाने के लिए जिस चाबी की जरूरत है जो क्या कहेंगे इसको जो जुज है जिस इस बात का वो शागिर्द ढूंढना है। و کلید از این نجات دادن دنیا چی است؟ تربیت کردن و پالیدن شاگرد. 우리가 제자를 찾아서 그 제자를 도와주면 그 제자가 그 지역과 그 나라를 살려냅니다. ये इसी तरह है कि जैसे हमने किसी शागिर्द को ढूंढा उसकी मदद की अब वो आगे शागिर्द को ढूंढेगा। طوری که ما کوشش کردیم شاگرد پیدا کنیم او را کمک کردیم همین قسم او هم تلاش میکنه دیگه کس شاگرد پیدا میکنه. 그 제자를 찾는 키는 복음을 선포할 때만 이 제자는 반응 보입니다. याद रखें इस बात को कि शागिर्द को ढूंढने का तरीका باشین که طریقه پالیدن شاگرد सिर्फ और सिर्फ खुशखबरी सुनाते वक्त हम उसे ढूंढ सकते हैं। در وقت رساندن خوشخبری ما او را پیدا کرده میکنیم. खुशखबरी के वसीले से उसे ढूंढ सकते با وسیله خوشخبری او را پیدا کرده 그리고 میکنیم. 찾아진 제자에게 복음을 계속 증언해 주면 이 제자가 힘을 얻고 그 지역과 나라를 살리게 됩니다. हैं। और जब हम इस शागिर्द को ढूंढ लेते हैं وقت ما او شاگرد پیدا میکنیم और फिर हम कंटिन्यूसली उसकी मदद करें و دوباره او را ما کمک उसको میکنیم बढ़ाएं او را میخوایم پیش بره वो शागिर्द आगे जाकर दुनिया की इंतहा तक खुशखबरी का काम को कर सकता है। و او شاگرد پیش رفته در تمام دنیا کار خوشخبری را کرده میتونه. 그래서 마태복음 28장은 모든 민족으로 제자를 삼으라고 얘기하셨고 और इसीलिए हम देखते हैं कि मत्ती के इंजील 28वें बाब में در انجیل متی فصل 28 पूरी दुनिया इस खुशखबरी पर ईमान लाएगी। تمام دنیا به خوشخبری ایمان میاره. 또 한편 마태복음 24장 14절에 복음을 증언하라고 얘기했습니다. जहाँ 28 बाब में कहा है कि पूरी दुनिया में जाकर मुनादी करो طوری که در آیه 28 گفته که در تمام دنیا वहीं 24 बाब की 14वीं आयत में कहता है در آیات دیگه هم میگه که कि जब इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी तब खात्मा होगा। وقتی که خوشخبری در تبلیغ خوشخبری در تمام دنیا شوه پس همه چیز ختم میشه. 저희는 교리를 전하는 이론가가 아닙니다. मैं जो है इस तरह से तालीम देने वाला कोई शख्स नहीं हूँ। ما میگه این کسی که یک آدم نیستم که تنها یک شخص باشم که تعلیم بتم دیگران. 저희는 이대로 했을 때 주님이 어떻게 역사하시는 것을 본 증인입니다. मैं गवाह हूँ कि जब हम कलाम के मुताबिक खिदमत कर रहे हैं तो खुदावन अपने आप को जाहिर कर रहा है। मैं इस बात का गवाह हूँ। ما میگه شاهد از این هستم وقتی که ما در مورد کلام خدا کار میکنیم خداوند عیسی مسیح خود را ظاهر میسازه. 지난 10수년 동안 100여 개국 이상에 이 복음이 전해졌고 그 안에 중요한 제자들이 일어났습니다. पिछले 10 सालों में در 10 سال گذشته मैं 100 से ज्यादा ममालिक में जाकर ये खुशखबरी सुना चुका हूँ ما در 100 مملکت رفتیم کشور این خوشخبری را और उन رساندیم. मुल्कों में मैंने शागिर्दों को जाहिर होते देखा है। و در او کشورها ما دیدیم ظاهر شده. 도무지 힘들다고 여겨지는 수많은 나라에 이 복음이 전해졌고 제자들이 일어났고 그들 통해서 역사가 계속 진행되고 있습니다.
हम देख पा रहे हैं कि ऐसे ममालिक जहां पर हालात बहुत ख़राब हैं, ما میبینم در اکثر ممالک که وضعیت خوب نیست، जहां पर लोग बहुत मुश्किल में हैं, در جایی که مردم بسیار در वहां भी مشکل जब است، हमने इस खुशखबरी को सुनाया با دوجه ما خوشخبری را شنواندیم तो हमने वहां से शागिर्दों को जाहिर होते देखा है. و ما در اونجا شاگردا را دیدیم ظاهر شد. 10년이 안 되는 시간 동안에 파키스탄에 놀라운 일을 하나님 행하셨습니다. इन 10 सालों में हमने पाकिस्तान में भी खुदा के बड़े अजीब कामों को देखा है. ما در 10 سال مگه کارهای عجیب خداوند را هم در پاکستان دیدیم. 이제 하나님께서 이란과 아프가니스탄에도 그 일을 행하실 줄로 믿습니다. हमारा ईमान है कि अब से आगे खुदा अफगानिस्तान और ईरान में भी इसी तरह काम करेगा. ما مگه ایمان داریم که خداوند امیر رقم در ایران و افغانستان هم کار میکنه. 분명히 얘기한 것은 이건 사람의 능력으로 하는 것이 아닙니다. इस बात को समझ लें कि ये इंसान की कुव्वत से नहीं होता. این را مگه بفهمند که به قوت انسان نمیشه. 저와 여러분에게 주어진 이 복음 자체가 능력이 있기 때문에 그 일을 행하시며 समझिए इस बात को कि अगर आप कलाम के मुताबिक खुशखबरी के ऐन मुताबिक काम करेंगे این را مگه بفهمید مطابق کلام اگر شما کار خوشخبری را پیش ببرید، 성경에서 알려주신 이 방법대로 그대로 그 길만 걸어가다 보면 하나님이 우리를 통해서 행하신 일을 여러분 보게 될 것입니다. जो तरीकाकार खुदा ने अपने कलाम के वसीला से हमें बताया है, طریقه کار که مگه خداوند توسط کلامش به ما گفته، अगर हम उसके ऐन मुताबिक फरमाबरदारी के साथ जिंदगी गुजारेंगे مطابق از او اگر ما زندگی فرمانبرداری را پیش ببریم، तो खुदा जरूर हमारी मदद करेगा. پس خداوند همیشه ما را کمک میکنه. 여러분의 상황을 볼 때 세계복음화가 더디다고 생각할 수 있지만 분명히 제가 말씀드릴 수 있는 것은 세계복음화는 지금 아주 강력하게 진행 중이라고 하는 사실입니다. मेरे अजीजों, हम यहाँ पर आपके सामने इस वक्त गो के कलाम सुना रहे हैं, و ما مگه در این وقت کلام خدا را به شما میشنوانیم، लेकिन इसके साथ साथ हम इस कलाम के वसीला से दुनिया की इंतहा तक आलमी बशारत के काम को तेजी से होता देख रहे हैं. و ما این را میبینیم کلام خدا را در عالم بشریت که مردم میآموزه. 틀림없이 파키스탄은 복음화 될 것이고 이란과 아프가니스탄도 복음화 될 것입니다. इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में भी निजात का काम जल्द पूरा होगा और उसके साथ साथ ईरान और अफगानिस्तान में भी जल्द این पूरा होगा. مگه دور نیست که در پاکستان هم این موضوع ختم میشه، در افغانستان و پاکستان هم. 하나님이 그 일을 위해서 저와 여러분들 먼저 뽑으셨다 이렇게 생각할 수 있습니다. आप इस बात को इस तरह समझ सकते हैं कि इस काम के लिए खुदा ने आपको पहले चुन लिया है. این را مگه بفهمند که به خاطر از این کار خداوند از قبل شما را جستجو کرده. 여러분에게 여러분의 나라를 살릴 수 있는 엄청난 복음이 주어진 것은 여러분 인생의 최고의 기회인 줄 믿습니다. ये समझ लें कि खुदा ने आपको अपनी कीमती खुशखबरी सबसे पहले आपको दी है. این را مگه بفهمند که خداوند قیمتترین خوشخبری خود اول به شما داده، इसलिए कि खुदा चाहता है कि आप खुदा के लिए इस कीमती खुशखबरी के साथ उसके काम में हिस्सा लें. به خاطر که خداوند میخواهد که در این خوشخبری قیمتی از او شما سهم داشته باشید. 그래서 주의 성령께서 여러분들 더욱 강력하게 사용하셔서 우리가 다음에 보게 됐을 때는 더 많은 간증을 가지고 모일 수 있게 되기를 바랍니다. इसलिए हम उम्मीद करेंगे به این خاطر ما امید میکنیم که क्या जब आप इस पैगाम को अपने साथ लेकर जाएंगे این پیغام شما همراه خود ببرین और फिर जब दोबारा अगर खुदा मुमकिन करे और हम सब इकट्ठे होंगे و باز دوباره اگر خداوند لطف کنه ما دوباره तब आप अपनी बड़ी गवाहियों के साथ वापस आएंगे. و ما باز گواهی بسیار زیاد با هم خواهد بودیم. 주님의 능력 있는 이름으로 여러분을 축복합니다. खुदावन के कुव्वत वाले नाम में हम आपको बरकत देते हैं. خداوند با نام قوی خود به ما برکت بده. आमीन. 감사합니다. آمین. शुक्रिया.